Hello children, welcome to Smart Study of Economics. We met in the last video and your support, your motivation, actually it was too good and that motivated me a lot. And so I have come with the second video and it is about the government budget. I'm not going to teach you the entire chapter in this, but yes, I will give you the mind map. Mind map means that will tell you what are the topics which are important, what are the topics which are to be done in this chapter, and which topics are very important. So let's begin with it, and I'm hoping that you will like this video also. So now, government budget. First of all, we have to start with the definition. So how to make the definition, what to write in the definition. So remember 4 words. Number 1, it is a systematic record. It is a systematic record, this is the first point. Number 2, of government receipts and expenditure. गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का ये एक सिस्टमैटिक पेपर रिटन वेल प्लान रिकॉर्ड होता है. नंबर 3, ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर मीन्स दिस इज द बजट फॉर 1 year. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मेड बजट फॉर 2020 to 21. So government made it like this. So it is a budget of 1 year. But the fourth important point is it is estimated. Estimated means this is not actual. ये actual नहीं है, ये planned है. तो ये planned budget है आपका, ये actual नहीं है. So it is a systematic record of government receipts and expenditure during an accounting year. So now the question will come in your mind. तो ये word कहाँ आएगा? ये word आएगा यहाँ पे. Government estimated. ये word यहाँ पर आएगा. बट अगर मैं इसे अलग से नहीं लिखती तो आप ये वर्ड को स्किप कर जाते, तो इसलिए इसे अलग से लिखना बहुत जरूरी है. नाउ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 year. दैट इज एज आई हैव रिटन हियर दैट 2020 एंड 21 का जो बजट गवर्नमेंट ने बनाया, तो गवर्नमेंट वाज नॉट नोइंग अबाउट द कोरोना, कि कोरोना इज गोइंग टू कम इन आवर इकोनॉमी एंड आवर जीडीपी विल गो डाउन. नो. सो बिकॉज ऑफ दैट 1 year बजट इज मेड. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड है, प्लान रिसिप्ट्स है, इतनी इनकम मिलने वाली है, इतना खर्चा हम करेंगे, और ये 1 साल का है, यानी टिल नेक्स्ट February टिल नेक्स्ट मार्च ये हमारा ये एक बजट बना हुआ है और ये एस्टिमेटेड है. सो दिस इज, इफ यू कंबाइन इट, ऑल दीज 4 points इफ यू कंबाइन, द डेफिनेशन वुड बी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of estimated government receipts and expenditure during a financial year. आप financial year लिखो या आप accounting year लिखो, this is the first definition. तो मैंने इसे 4 parts में या 3 parts में you can say I have divided, and the definition is ready. It is so simple to do it, and no ratification is required. Systematic record of estimated receipts and expenditure during an accounting year. मेरे बोलते बोलते आप लोगों को याद हो जाएगा. Now, when we go about the topic, कि what are the important topics of government budget and what would be asked in the boards, the most important thing is that we are doing a smart study, and a smart study claims that we must do those topics first which are very important. So if I am going to make a mind map of this government budget, just see to it very carefully. First of all, you should know the meaning. What is the meaning of the government budget, which I have written just now, that systematic record of estimated government receipts and expenditure during an accounting year. Now after that, the teacher will or can ask you the components, and it was asked in the boards also, and I think it was 2018 this was asked in the boards, like components of government budget, and there are 2 components. One is the revenue budget, 2 is the capital budget. So 2 components of the budget. अब देखो कितना इजी है, 2 बजट के components है, एक revenue है, एक capital है. revenue क्या होता है? revenue word आते ही क्या आता है? which reoccurs, जो reoccur कर रहा है. Number 1, which does not affect, जो आपका इफेक्ट नहीं कर रहा, कंट्री का इफेक्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं कर रहा. क्या इफेक्ट नहीं कर रहा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज.
अब मैं इसे यहाँ छोड़ दूं तो इज इट अ कंप्लीट आंसर? आंसर इज नो. Why? Because which does not affect assets and liabilities of mine or yours or of the government. So I will have to write of the government. तो जो assets and liabilities government के इफेक्ट ना करे वो रेवेन्यू बजट है. इसका ऑपोजिट यहाँ पे लिख दो, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे लिखा रीअकर्स, यहाँ पे लिखो डज नॉट. सिंपल यहाँ पे लिख दो डज नॉट रीअकर्स. यहाँ पे आपने लिखा which does not affects, यहाँ पे लिख दो विच इफेक्ट्स. कितना टाइम लगेगा आपको लर्न करने का? आपको लर्न करना है एक पार्ट और आप फ्रेम कर सकते हो दी अदर पार्ट. तो कैपिटल जहां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटल वर्ड आ जाए दैट मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज. वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स इफेक्ट हो रहे हैं, लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है. तो विच इफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द कैपिटल बजट. क्वेश्चन कम्स रेवेन्यू बजट में सिर्फ रेवेन्यू बजट है या कुछ और भी है? तो आंसर इज है. इसमें है आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसमें ये दो चीजें हैं, रेवेन्यू से ही रिलेटेड है आपके, और वो दो चीजें आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन कैपिटल बजट में क्या होगा? सिमिलर. यू हैव टू चेंज दिस वर्ड. इस वर्ड को चेंज कर दो और इस वर्ड को चेंज करके कैपिटल ले आओ. So what would be the answer? I know that you all know it, but still I am writing it here. It is capital receipts and capital expenditure. आपने ये दो कंपोनेंट्स में लिख दिए. तो अब क्वेश्चन बनाने शुरू करो. पहला क्वेश्चन क्या हुआ? डिफाइन. अपने आप से क्वेश्चन बनाओ, अपना क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करो. सेकेंड, एक्सप्लेन these two. Third, write down about the features of revenue budget and capital budget. Fourth, what are the components of revenue budget? Revenue receipts and revenue expenditure. What are the components of capital budget? Capital receipts and capital expenditure. Further इसे बढ़ा सकते हैं, इसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. और अगर इसको बढ़ाना है तो इस फ्लो चार्ट के लिए हमें ये ऊपर का सारा पार्ट हटाना, इरेज करना पड़ेगा. अब हम आते हैं इस पे रेवेन्यू बजट पे. रेवेन्यू बजट में मैंने आपसे कहा दो चीजें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. मैं शॉर्ट में लिख ली हूँ. आर का मतलब रिसिप्ट्स है और ईएक्सपी का मतलब एक्सपेंडिचर है. अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं? वो रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट्स लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एसेट्स. जो आपके ना तो लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं और ना ही आपके एसेट्स को रिड्यूस करते हैं, वो आपके कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है. विच नीदर क्रिएट्स. अब यहाँ पे आप लायबिलिटीज पहले लिख रहे हो, एसेट्स बाद में लिख रहे हो, यानी कि आपका आंसर ये है. और जैसे ही वर्ड आ जाता है रेवेन्यू तो आपका आंसर है नीदर. तो नीदर, रेवेन्यू आते ही नीदर यानी डज नॉट. और ऊपर वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? लायबिलिटी, और दूसरा वर्ड क्या है? एसेट्स है. लेकिन जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखोगे इट इज द सेम, नीदर क्रिएट्स नॉर रिड्यूसेस. अब मैंने यहां पर लिखा नीदर क्रिएट्स नॉर रिड्यूसेस ऑफ द गवर्नमेंट. अब उल्टा कर दो वर्ड. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? एल ऊपर था और ए बाद में था. अब उल्टा कर दो. नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, ए और एल. तो आपको पहले एल ए था, अब ए एल है. तो एल ए एल ये आपका कॉन्सेप्ट है. अब इसमें अगर आपने नीदर डाल दिया तो वो रेवेन्यू है, और अगर आपने नीदर को इरेज कर दिया और सिर्फ आपने कहा है कि क्रिएट्स एसेट्स रिड्यूसेस लायबिलिटी, तो वो आपका वर्ड कौन सा हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा. तो सिर्फ एल ए एल से याद करो और इससे ऐसे याद करो कि ये आपकी ट्रिक्स बन जाए. तो याद रखो. अब यहाँ पे मैंने कहा नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इधर भी लिखो ऑफ द गवर्नमेंट. ये लिखना जरूरी है. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो बच्चे हमेशा याद रखना आप लोग कि आप लोग नहीं लिखोगे यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बजट. ये हमारा पर्सनल बजट, फैमिली बजट नहीं है, ये गवर्नमेंट बजट है. तो क्या याद रखा मैंने इसमें? एल ए. इसमें क्या याद रखा? ए एल. रेवेन्यू वर्ड आते ही मुझे क्या याद रखना है? रेवेन्यू वर्ड आते ही मुझे लिखना है नीदर.
नॉर। तो अगर मैंने कहा नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स, आइडेंटिफाई करो, नीदर वर्ड आया, इट मीन्स रेवेन्यू, एल पहले आया, दैट मीन्स रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एल पहले आएगा, एसेट बाद में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ए पहले आएगा और एल बाद में आएगा। तो कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है, इससे आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। आपको ये भी लगेगा हम सिंपल वे में से याद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई भी वो नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन जब हम ऐसे सिंबॉलिकली कुछ ट्रिक्स बना के पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है और इट सेटल्स डाउन इन योर माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में भी सेटल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स दे लाइक इट एंड दे नेवर फॉरगेट अबाउट इट। Now, come to the next point and that is capital. अब मुझे कैपिटल के डिफरेंसेस को याद करना है एंड कैपिटल के डिफरेंसेस को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल रिसिप्ट्स और यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने ये कैपिटल रिसिप्ट्स लिखा, मेरे को कौन सा वर्ड हटाना है, नीदर। मुझे कौन सा वर्ड हटाना है, नॉर। अब मेरा आंसर क्या बना, क्रिएट्स लाइबिलिटीज, रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब teacher will be asking you a better definition, some words should be there from the book, so what will you add, either or। तो जब either or create आ जाता है और definition सेम रहता है, लेकिन neither nor की जगह पर either और आ जाता है, तो अपनी एक ट्रिक्स बनाओ, neither nor liability assets और assets liabilities। ये अब neither creates liability nor reduces assets, neither create asset nor reduces liability। तो जब आप इधर neither ये लिख रहे हो, this is revenue, लेकिन आपने neither हटा दिया और either डाल दिया, either और डाल दिया और liability assets, assets liability, क्रॉस का साइन है, इधर L है तो इधर L है, इधर A है तो इधर A है। तो आपने ये बना दिया और आपने इधर और डाल दिया, तो ये क्या बन गया आपका, कैपिटल रिसिप्ट्स। ये क्या बन गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बनाओ आपका आंसर क्या है, दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये क्या बना आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बनाते हैं आंसर, समराइज करते हैं, खत्म करते हैं इसको। एंड व्हाट इज द टॉपिक, द टॉपिक इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। और अभी इस टॉपिक में हमने क्या करा, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इज एस्टिमेटेड है, प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है। नंबर 2, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट है। नंबर 3, रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जो रिकर्स हो रहा है, रेकरिंग है, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट की। कैपिटल बजट क्या है, वो बजट जो रेकरिंग नहीं है, 1, और जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफेक्ट करती है, वो कैपिटल बजट है। अब आता है रेवेन्यू बजट को डिफाइन कैसे करें, दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which neither creates liability nor reduces assets, that is revenue receipts, which neither creates assets nor reduces liability, that is revenue expenditure। neither को हटा दिया, either डाल दिया और either डालते ही आपका आंसर बना which either creates liability or reduces assets, which either creates asset or reduces liability, that is capital expenditure। So in just 4 columns, just make 4 columns, 1, 2, 3, 4 columns, and you can describe about revenue receipts, revenue expenditure, capital receipt, capital expenditure। इधर आपका LA, इधर आपका AL, LAAL, ये आपका वर्ड बन जाता है। और इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने ये वर्ड बनाया तो रेवेन्यू के साथ आपको वर्ड का जो लगाना है वो है नीदर, और जो कैपिटल के साथ आपको वर्ड लगाना है वो है ईदर, ईदर और नीदर नॉर। और आपकी डेफिनेशन 5 मिनट में रेडी। आप रेडी, आपका हाफ ऑफ द चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन 1/3 ऑफ द चैप्टर आपका ऐसे मिनट में ही रेडी हो जाएगा। So these are the various, I have various other tricks also. If you will like my video, I'll definitely share it. If you will motivate me, I will motivate you to get better marks. So thank you so much children. God bless you all. Do well in your board exams and get the best marks. Bye bye. Take care.